Hello friends, welcome to EduTap and a warm welcome to the series that we have started for the upcoming UPSC EPFO 2025, which we are expecting the notification to be out soon, and as part of which we are doing 15 MCQs a day. And today we are going to see Labor Laws Minimum Wages Act 1948 Part 2. Part 1 we have already done, and today we are going to see Part 2 of the same. So friends, here comes the first question. So the first question says Section 4 of the Minimum Wages Act 1948 provides for composition of minimum rates of wages. Right? What is a composition actually? Now, which of the following components may be included in the minimum rate of wages fixed or revised by the appropriate government? So the name itself suggests that is Minimum Wages Act, some minimum wages have to be set, right? So for which what are the components that are taken into consideration? So कौन से ऐसे components है जो हम लोग consider करते हैं जब ये wage हम लोग set करते हैं? So in this case जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज द बेसिक रेट ऑफ वेजेस, जो बेसिक है उसके ऊपर द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये कल वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था, आप एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ये सारे आते हैं, और बेसिक वेज रेट विथ और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, and the cash value of the concessions in respect of the supplies, majorly जो essential commodities है उनके rates को consider करते हैं यहाँ पे majorly, other than the cost of living allowance and the basic rate of wages for wage rate computation. So friends, here comes the next question, that is in fixing or revising minimum wage rates for a scheduled employment, the government has the option to either appoint a committee and subcommittees or publish its proposal in the official gazette. ये कमिटी सब कमिटीज किस तरह से होते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है in the earlier sections. Here this question is based on section 5 where the procedures for fixing and revising minimum wages is done. So what is the minimum period of notice required to be given by the government while publishing its proposals in the official gazette for fixing or revising minimum wage rates? Okay, जब भी ये official gazette में देना है या फिर दे देते हैं, उसके बाद उनको एक मिनिमम टाइम पीरियड नोटिस इतना देना पड़ेगा सो दैट उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है? वो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? सो यहाँ पे वो टाइम पीरियड जो देते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट जो भी रेलेवेंट रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज है या फिर रेलेवेंट अथॉरिटीज है उनको 2 months का टाइम देते हैं वो वेज रेट एंड ऑल दैट इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो ये तो हमने देख लिया कि जो कमिटी करती है और बेस्ड ऑन द ऑफिशियल गैजेट उनको 2 महीने का टाइम दिया जाता है रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को टू अप्लाई दिस. नाउ as per the same section, after reviewing committee advices and public representations, ऐसे नहीं कि वो गैजेट ऐसे रिलीज करते हैं, पहले उसका रिव्यू होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफिशियली फिक्सेस और रिवाइजेस द मिनिमम वेज रेट्स for each scheduled employment. How it is done? Through a notification in the official gazette. Okay, कभी कभी official gazette नहीं, but okay, वो जैसे एक रिलीज किया है फॉर एग्जाम्पल एक वेज रेट उन्होंने रिलीज किया है, रिलीज करने के बाद वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ये सब एक बार रिव्यू करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट इवन इफ otherwise also, even if the official gazette is not released, in otherwise cases also they are given some time before which this will come into effect, that is the wage rates come into effect. So in this case, what is the time period within which the revised minimum wage rates take effect unless stated otherwise? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वो नोटिफिकेशन आता है, अगर कुछ दिक्कत नहीं है या फिर कुछ अपोजिशन में कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है, देन दैट नोटिफिकेशन और द ऑफिशियल गैजेट जो भी है दैट हैज 3 months of expiry, मतलब 3 months से पहले from the date of notification that would be taken, that is that has to be accepted.
Okay. Coming to the next question, under Section 7 of the Minimum Wages Act 1948, regarding the advisory board, which of the following statements is or are correct? Now, the advisory board is responsible for coordinating the work of committees and subcommittees formed for fixing and revising minimum wage rates. The composition of the advisory board is entirely at the discretion of the government. In this case, it is the appropriate government for the relevant sectors. Now, the third statement, the advisory board also provides recommendations on measures to ensure effective implementation of the minimum wages. ये three statements है. Now, as per section 7, which of these are true or you can say correct? कौन से correct है? Now, यहाँ पे 1 and 3. The advisory board is responsible for coordinating the work of committees and subcommittees formed for fixing and revising minimum wage rates. And the advisory board government may appoint. It's not that only at the discretion of the government it would be appointed. Okay, first thing. And the advisory board also provides recommendations on measures to ensure effective implementation of the minimum wages. जो भी committees and subcommittees जो वर्कआउट करके गवर्नमेंट के थ्रू जो वेज रेट का जो रिलीज होता है, जो अर्लियर क्वेश्चन में जो हमने सेक्शन में देखा है, फॉर दैट इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए भी एडवाइजरी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल रहेगा. Now comes the next question. The Central Advisory Board is a statutory body constituted under section 8 of the Minimum Wages Act 1948. अब इससे पहले ही हमने देखा था कि जो कमिटीज फॉर्म होते हैं, सब कमिटीज फॉर्म होते हैं जिनके थ्रू एक्चुअली वेज रेट का जो रिकमेंडेशन एंड वर्कआउट होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी होती है, राइट? वो एडवाइजरी बॉडी हमने देखा है कि मे बी नो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, दैट रेस्पेक्टिव अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल हेल्प देम इन सेटिंग देम अप, राइट? नाउ व्हाट आर दीज एडवाइजरी bodies actually? The Central Advisory Bodies is a statutory body constituted under the section 8 of the Minimum Wages Act 1948. Why? To advise the central and state governments on matters related to fixation and revision of the minimum wages. Now, what is the characteristic feature of the composition of such central advisory boards? Okay, in this case the Central Advisory Board comprises of equal number of employer and employee representatives. Employers जितने भी हैं उतने ही employees भी representatives होंगे इस advisory Central Advisory Board में. Along with that, a maximum of 1/3 of independent members also would be there, and these are generally nominated by the central government. एंड इसका चेयरमैन कौन रहेगा? बोर्ड का चेयरमैन ऑलवेज इट वुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, एक इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी द चेयरमैन ऑफ द सेड बोर्ड. Here comes the next question. Section 10 of the Minimum Wages Act 1948 empowers the appropriate government to correct certain types of errors in wage rate orders. वो अपना एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं ऑफिशियल गैजेट्स एंड अकॉर्डिंगली अगर कुछ गलतियां है, एरर्स है तो दैट दे कैन रेक्टिफाई. Now, what type of errors can be appropriate government rectify in wage rate orders under section 10 of the said act? मतलब कौन से ऐसे errors है जो correct हो सकते हैं? Now, यहाँ पे जो errors है related to clerical और arithmetic errors और accidental omissions, उनमें कुछ errors है तो definitely that can be corrected. Okay, while as per the section 10 of this act, not others.
So here comes the next question. Under Section 11 of the Minimum Wages Act 1948, under what condition can the payment of minimum wages be permitted partly or fully in kind rather than पैसे देने के बजाय वो काइंड में, मतलब इधर कमोडिटीज दे के ऐसे कुछ कर सकते हैं। इन कौन से ऐसे सिचुएशन में वो कर सकते हैं? विद द कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ओके, बट ये नहीं है। विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये भी नहीं है। थ्रू एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इफ इट फील्स नेसेसरी, जहाँ पे भी नेसेसरी लग रहा है, मतलब कैसे कुछ रिमोट एरिया से जहाँ पे पीडीएस नहीं जाता है, तो वहाँ पे देर दे ट्राई टू इस तरह के अमाउंट देने से, पैसे देने से ज़्यादा दे टेंड टू प्रोवाइड देम इन द फॉर्म ऑफ काइंड। अगर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है जो रिड्यूस रेट्स में देना है या जो भी है, फॉर दैट ऑल्सो दे रिलीज एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन सो दैट जो सप्लाई करते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ दीज कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स, उनको सप्लाई करने के लिए कंसेशनल रेट्स में ये ऑफिशियल अगेन गेजेट में ही वो निकालते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली इफ द एम्प्लॉयर हैज बीन पेइंग वेजेस इन काइंड फॉर मोर देन 5 years, नो, ओनली वेर एवर इट फील्स नेसेसरी, जहाँ पे नेसेसरी है डेफिनेटली दे ट्राई टू incorporate this thing, that is providing or payment in form of kind rather than the regular wages. अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन सही से सुना है तो नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. What is the frequency at which the appropriate government may mandate a day of rest along with the payment of remuneration for scheduled employments under Section 13 of the Minimum Wages Act 1948? कितने दिनों का वो बेसिक दैट इज डेज रहता है वर्क का, उन डेज में एक दिन की छुट्टी मिलती है, रेस्ट डे होता है. सो हियर जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया, दिस वाज फॉर एवरी 7 days. ओके, coming to question number 10, that is the next question. Under section 13 of the Minimum Wages Act, what is the implication of the appropriate government providing for a day of rest in every period of 7 days for scheduled employments? किस तरह से वो देते हैं? Now here employees are exempt from paying the wages for the day of rest. No, they have to pay the amount. We have just now seen that overtime का जितना भी amount होता है, not less than that they have to pay. Employees are entitled to compensatory leave for working ऑन द डे ऑफ रेस्ट. नो, डे ऑफ रेस्ट के दिन अगर वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ओवर टाइम के बेसिस पे जो अमाउंट मिलता है उससे कम नहीं मिलेगा. Employers must pay remuneration for the day of rest in addition to overtime rates for work done on the day. अगर रेस्ट के दिन वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ओवर टाइम में ही कंसिडर किया जाएगा. सो उस दिन का वेज तो उनको मिलेगा ही जो एक्स है, प्लस जो ओवर टाइम वाला अमाउंट है वो भी उनको मिलेगा. The day of rest can be substituted with a holiday on any other. No, that can't be done. ऐसे कुछ substitution नहीं होगा. Definitely उनको जो भी ओवर टाइम करेंगे उनको वो ओवर टाइम के बेसिस पे ही अमाउंट मिलेगा. Moving on to our next question. Under section 14 of the Minimum Wages Act, ये section 14 का है, of Minimum Wages Act 1948, what is the rate at which an employee must be paid for working beyond normal hours if their minimum wage rate is fixed hourly, daily or by a longer period? Okay, किस तरह से वो पे करते हैं जो if they are working beyond the normal hours. Now this here in this case, at the overtime rate fixed under the act or the rate under the appropriate government's law, whichever is higher. just now हमने डिस्कस किया था overtime rate अलग सा होता है. ओके, ओवरटाइम के रेट के बेसिस पे ही उनको पेमेंट दिया जाएगा अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल आवर्स से अगर अलग या ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो. और the rate under the appropriate government's law,
जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनके बेसिस पे उन्होंने जो भी लॉ बनाया है उसमें जो भी ओवर टाइम का जो रेट फिक्स किया है उसमें उसके बेसिस पे दोनों में जो भी हायर रहेगा वो अमाउंट पे किया जाएगा उस एम्प्लॉय को। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 15 का। नाउ अंडर सेक्शन 15 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, when is an employee not entitled to receive wages for a full normal working day despite working less than the requisite number of hours? ओके, कौन सा ऐसा रीजन होगा जिसमें अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से कम किया है तो उसको फुल डे वाला वेज नहीं मिलेगा। सो हियर इन दिस केस व्हेन द एम्प्लॉयज रिलक्टेंस टू वर्क एंड नॉट द एम्प्लॉयर्स फेलियर टू ऑफर वर्क रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ वर्क, अगर बिना कोई रीज़न के या फिर बिना कोई इंटीमेशन के अगर वो काम पे नहीं आता है, कोई रीज़न नहीं है, ही इज़ रिलेक्टेंट इन वर्किंग, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयर को फुल अथॉरिटी है कि वो उसका वेज डिडक्ट करे। एंड सी व्हेन द एम्प्लॉयर फेल्स टू प्रोवाइड वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसको वो तो एम्प्लॉयर की हेडेक है, सो ही कांट डिडक्ट दैट। when the employee is absent due to legitimate medical reason, अगर कोई reason है valid, definitely they have to honor that, तो उसमें भी उसका wage cut नहीं होगा। when the employee is on a scheduled break or a holiday, तब भी नहीं होगा, but yes when he is showing some reluctance in working even after employer offer कर रहा है work, then that would call for this wages उसको कट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 16 of the minimum wages act 1948, what is the obligation of an employer when an employee performs 2 or more classes of work with different minimum wage rates? okay, so इसमें क्या है, for example ओके, फॉर एग्जाम्पल वो एक एम्प्लॉय है, वो स्वीपिंग का जॉब भी कर रहा है एंड कुछ और कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा है एक ही जगह पे। स्वीपिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल उसको मिलते हैं 200 रुपीज़ पर आवर, ओके ओके, एंड कंस्ट्रक्शन के लिए उसे मिलता है 250 रुपीज़ पर आवर। ओके, ना उसने 2 आवर्स का स्वीपिंग किया है एंड 2 आवर्स का कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। नाउ यहाँ पे ऐसा नहीं, दोनों डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क है और दोनों का मिनिमम वेज भी अलग है, इसका 200 है स्वीपिंग का एंड कंस्ट्रक्शन का 250 है। अब एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता है कि मैं 200 ऑन एन एवरेज पकड़ लूंगा या 225 ऑन एन एवरेज पकड़ लूंगा एंड 4 आवर्स का मैं आपको पे करूंगा, नहीं, इसका जो मिनिमम वेज रेट है उसके हिसाब से उनको 2 आवर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 400 एंड इन दिस केस 500 एंड टोटल उसको 900 उनको देना पड़ेगा एज पर द जो भी होल डे का है या फिर फ्लैट रेट है, बेस्ड ऑन दैट, अगर होल डे का कुछ फ्लैट रेट है उसके हिसाब से देना पड़ेगा या आर्ली कुछ है तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। बट ही कांट से दैट मैं एवरेज पकड़ लूंगा। सो हियर इन दिस केस द करेक्ट आंसर वुड बी पे द एम्प्लॉय एट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट इन फोर्स फॉर ईच क्लास ऑफ वर्क। ओके, पे द एम्प्लॉय एट द हाइएस्ट मिनिमम रेट एप्लीकेबल, नो हाइएस्ट नहीं, दोनों का अलग अलग, सो नो ये करेक्ट नहीं है। पे द एम्प्लॉय एट द एवरेज ऑफ द मिनिमम, एवरेज भी नहीं क्योंकि दोनों का अलग है तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल देना पड़ेगा। पे द एम्प्लॉय एट द मिनिमम रेट एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ वर्क दैट ऑक्युपाइज द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने 3 आवर्स ये किया है 2 आवर्स ये किया है, अब एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकते ये 3 आवर्स किया है तो मैं ये ज़्यादा टाइम किया है तो मैं इसके बेसिस पे तुम्हें वेज दूंगा, नहीं, उसको तो पूरा अलग अलग करके ही देना पड़ेगा। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन का मेन मकसद ये है ताकि उसको सही से पैसे मिल जाए। So moving on to our next question, under section 17 of the minimum wages act 1948, what is the employer's obligation when an employee is employed on piece work and only a minimum time rate is fixed? Okay, now इसमें क्या है, for example एक सिनेरियो लेते हैं। okay, now इस सिनेरियो में क्या है, पीसेस कुछ उन्होंने बोला कि पर पीस कुछ पर पीस वर्क, ओके, पर पीस वर्क उनको 20 रुपीज़ कुछ मिलेगा, ठीक है, एंड वहाँ पे मिनिमम
वेज जो है नॉर्मली 500 पर डे है। तो नॉर्मली जो उनको पीस वर्क जब देखते हैं तो 20 रुपीस ही मिलता है। अब इन्होंने पूरे दिन में मिला के भी 10 पीसेस ही किए हैं। ओके, बट पीसेस के हिसाब से देखा जाए तो इनको कितना मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए, राइट। बट मिनिमम वेज कितना है वहाँ का, 500 है पर डे। सो इवन दो उन्होंने जो भी 8 आवर्स का जो वर्क में उन्होंने ये 10 पीसेस ही बनाए, स्टिल they have to be provided with the minimum wage rate. So here in this case B is the correct answer. The employer must pay the employee wages at or above the minimum time rate even if the output is low. यहाँ पे output कम है, 200 worth output है, but still minimum wage rate वहाँ का per day 500 ही है, so they have to be paid with the 500 rupees only. Okay. So moving on to our next question. What is the status of an inspector appointed under section 19 of the Minimum Wages Act 1948? Now inspectors का जब हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का देखा था, ऑलमोस्ट वही फंक्शन है यहाँ पे भी इंस्पेक्टर्स का, एंड हियर दे आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। now ये इंडियन पीनल कोड अभी रिप्लेस हुआ है विथ भारतीय न्याय संहिता। सो बीएनएस के हिसाब से हो रहा है सिंस जुलाई 1st 2024। ओके, so they are deemed to be employees of the establishment they inspect? No, they need not. They are deemed to be advocates for the employees in scheduled employments? No, they उनका बिल्कुल फंक्शंस अलग ही है। जैसे कि वहाँ पे नो जो भी रेलेवेंट रूल्स है या जो भी वर्क प्लेसेस है वहाँ जाके उनको सही से हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग सही से हो रहा है कि नहीं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है काम, जो भी नोटिसेस है, वेज डिटेल्स है, सब सही से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये सब ये देख सकते हैं, उनका मेजर काम ये है। ओके, they are not the advocates of employees here. They are deemed to be representatives of the employers in scheduled employers? No, उनके भी नहीं है, वो एक्चुअली दोनों का भी बैलेंस करने के लिए ही काम करते हैं कि ये रिकॉर्ड कीपिंग सही से हो जाए एंड वॉट एवर द रूल्स दैट हैव बीन सेट वो सही से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं उस एस्टेब्लिशमेंट में, वो देखने के लिए इनका मेजर ऑब्जेक्टिव वो रहता है एज एन इंस्पेक्टर। Now coming to the next question, what is the time limit within which an application for direction in case of a claim under section 20 of the Minimum Wages Act 1948 must be filed? See, appropriate government ना appointment मतलब एक अथॉरिटी सच एज कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन, लेबर कमिश्नर या फिर अदर ऑफिसर जिनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस रहे, जैसे सिविल कोर्ट जज का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है या टाइप मजिस्ट्रेट का एक्सपीरियंस रहे। इससे क्या है, अगर कुछ क्लेम्स आ रहे हैं कि मुझे सही से वेज नहीं मिला है या फिर नंबर ऑफ रेस्ट डेज का उन्होंने कट किया है बाकी का ही दिया है या फिर मिनिमम वेज रेट्स फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे कुछ क्लेम्स होते हैं तो वो इन अथॉरिटीज के थ्रू कर सकते हैं, राइट। एंड वो इधर डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को अपना ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हैं या फिर इंस्पेक्टर जो भी वहाँ चेकिंग कर रहे हैं वो भी उनकी तरफ से ये फाइल कर सकते हैं, ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। नाउ ये क्लेम फाइल करने के लिए कितने टाइम में, मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ है वहाँ से कितने टाइम तक ये क्लेम फाइल कर सकते हैं? नाउ इन दिस केस दे कैन फाइल दिस क्लेम विद इन 6 months, within 6 months from the date on which the minimum wages or other amount became payable। जो भी प्रॉब्लम हुआ है उनको, मतलब मिनिमम वेजेस नहीं पे किया है या फिर रेस्ट डेज का उन्होंने काटा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, वॉट एवर माइट बी द क्लेम, विद इन 6 months that has to be appealed for. Here comes the next question. Under section 20 of the Minimum Wages Act 1948, what is the maximum amount of compensation that the authority can order? ओके, अथॉरिटीज क्या कौन कौन हो सकते हैं, ये हमने अर्लियर क्वेश्चन में डिस्कस किया था, राइट। कैन ऑर्डर द एम्प्लॉयर टू पे इन केस ऑफ ए क्लेम रिलेटेड टू वेजेस बिलो द मिनिमम रेट। मैंने इससे पहले भी एक बात बताया कि
ईदर मिनिमम वेज से कम पे कर रहे हैं और कुछ रेस्ट डे का उन्होंने पैसे काट लिया है या सम अदर प्रॉब्लम, राइट। सो जहां पे भी वेज रेट से कम पे कर रहे हैं, इन सच केसेस द अथॉरिटी कैन ऑर्डर द एम्प्लॉयर टू पे 10 टाइम्स द अमाउंट जो भी उन्होंने पे नहीं किया है इन अमाउंट ऑफ एक्सेस, उतना वो कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी है। फॉर ऑल अदर केसेस, जैसे कि उन्होंने रेस्ट डे वाला पैसे काट लिया है, इन सच केसेस दे हैव टू पे दैट अमाउंट, जो भी रेस्ट डे वाला अमाउंट उन्होंने काटा है, प्लस 10 रुपीज, ओके, उतना वो दे सकते हैं अलॉन्ग विद कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज, ओके। अगर कुछ और रीजन की वजह से उनका मेडिकल है, कुछ दिक्कत है, फिर भी उन्होंने पैसे काटा है, इन सच केसेस ऑल्सो जो उन्होंने पैसे काटे हैं वो प्लस compensation not exceeding 10 rupees would be can be applied or can be applied by the authority on the employer, ठीक है। अगर कुछ मैलिशियस वाला किया है, मतलब वेक्सेशियस या फिर उनको तंग करने के लिए किया है या गलत कंप्लेंट किया है, ओके, इन सच केसेस 50 rupees up to 50 rupees will be penalized to the employer, okay। So we are expecting UPSC, EPFO, APFC and EO or AO 2025 to be to फेब या मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसमें एड्यूटैप की तरफ से 3 तरह के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। 1 द मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में क्या है, आपको जो ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो बस अभी प्रिपरेशन शुरू किया है उन्होंने अपना एग्जामिनेशन का। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं इन एग्जाम्स में, उनका कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर क्विजेस, ये सब मिलेगा। अलोंग विद दैट एवरी थर्सडे कुलदीप सर एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक सेशन लेंगे जिसमें कंटेंट को किस तरह से यूटिलाइज करते हुए आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें गाइडेंस भी देंगे आपको। अलोंग विद दैट आपके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, वो सब आंसर करेंगे उस दिन। ये हो गए मास्टर कोर्स। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस। इसमें क्या है, कुछ बच्चों का क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड उनको सब्जेक्ट्स है कि उसी सब्जेक्ट्स का उनको चाहिए, जैसे रीजनिंग क्वांट्स हम कर लेंगे लेकिन कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है उसके लिए उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज प्लस है, जो उस तरह के कंटेंट भी मिलेगा अलोंग विथ टेस्ट सीरीज, सो दैट वो अपने आप को टेस्ट कर सके, मतलब चेक कर सके उनका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है और कहाँ उनको हेल्प चाहिए। अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रोवाइडेड। नाउ थर्ड कोर्स ये है कि टेस्ट सीरीज, एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज। दिस इज फॉर ऑल दोज जिनको बिल्कुल अपना प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं और या कर लिया है, कि थोड़ा आइडिया है, एंड नाउ दे वांट सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सो ये 3 कोर्सेस है मेजरली अभी लॉन्च किया, मतलब अभी है एड्यूटैप के साथ फॉर द अपकमिंग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ और एओ पेपर्स। Thank you very much. Hope you have liked the session. See you all soon with next class very soon.